नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 2 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधियज्ञ कथां कोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयणा कले च कथं येणोऽसि नित्या तत्माभिः. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudana? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? तो अर्जुन का सेकंड क्वेश्चन है कि लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस कौन है एंड कैसे आपके शरीर में वो रहते हैं, मतलब कृष्ण भगवान के शरीर में वो रहते हैं, एंड कैसे एंड हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, हम जो सारे डिवोशनल सर्विस में भगवान के डिवोशनल सर्विस में खुद लिप्त है, वो कैसे अपने मृत्यु के समय में उन्हें याद कर सकते हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Lord of sacrifice may refer to either Indra or Vishnu. Vishnu is the chief of the primeval demigods, including Brahma and Shiva, and Indra is the chief of administrative demigods. Both Indra and Vishnu are worshipped by yagna performances, but there Arjun asks who is actually the Lord of yagna, sacrifice, and how the Lord is residing within the body of that living entity. Arjun addresses the Lord as Madhusudana because Krishna once killed a demon named Madhu. Actually, these questions, which are of the nature of doubts, should not have arisen in the mind of Arjun because Arjun is a Krishna conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is so expert in killing demons, Arjun here addresses him as Madhusudana so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjun's mind. जो लोग सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं, माना जाता है कि उनको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं, बट अर्जुन के मन में फिर भी ये सारे क्वेश्चंस आए, डाउट्स आए, जो कि डेमन्स के जैसे है या फिर डेमन के साथ में कंपेयर किया गया है। सो अर्जुन के मन में ये सारे डाउट्स को किल करना, मतलब करने के लिए अर्जुन चाहता है कि भगवान इन सब डाउट्स को हटा दे उसके माइंड से, इसीलिए उनको मधुसूदना बोला गया, जो डेमन्स को मार सके, तो डाउट्स जो डेमन्स जैसे हैं उनको मार सके। Now the word prayana kale in the words is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. Arjun is very anxious to know of those who are constantly engaged in Krishna consciousness, what should be their position at that final moment. At the time of death, all the bodily functions are disrupted and the mind is not in a proper condition. Thus, disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेथ के टाइम पे हम जो सारे कर्म करते हैं उसके ऊपर एक मतलब टेस्ट किया जाता है ना हमें एट द टाइम ऑफ डेथ। तो अर्जुन एंग्शियस है कि कैसे हम हर वक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह सके, ताकि डेथ के टाइम पे भी हम उन्हीं के बारे में सोच सके, ताकि हमारी बॉडीली फंक्शंस उस टाइम तो बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी जो माइंड होगी वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगी, तो हम कृष्ण को कैसे याद करेंगे, कैसे उस टाइम पे भी उनको याद रखेंगे। So, Maharaja Kulasekhara, a great devotee, prays, "My dear Lord, just now I am quite healthy, and it better than I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet." The metaphor is used because the swan, a bird of water, takes pleasure in digging into the lotus flowers. Its sporting proclivity is to enter the lotus flower. Maharaja Kulasekhara says to the Lord, "Now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately thinking of your lotus feet, then I am sure that my performance of your devotional service will become perfect. But if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted, my throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your name or not. Better let me die immediately." Arjun questions how a person can fix his mind on Krishna's lotus feet at such a time. तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वह तुरंत मर जाए या तुरंत ईश्वर के चरण में जब वो चाहे मुक्त होना उसी टाइम पे हो जाए। नेचुरल डेथ ही नेचुरल ही आता है,
तो कैसे ईश्वर के बारे में शरण रखना कैसे उस टाइम पे पॉसिबल है, वही जानना चाहते हैं। मतलब मैं ना धीरे धीरे करके सच में मतलब पूरी तरीके से सरेंडर हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ रोज़, और मैं रोज़ देख रही हूँ कि भगवान किस तरीके से, मतलब आई जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन कि कृष्ण की महत्व क्या है। उनका नाम लेते ही कैसे समस्या दूर हो जाती है। एंड दूसरे जो फॉर्म से, मैं बहुत साल से स्पिरिचुअलिटी में हूँ, बट दूसरे फॉर्म्स से उस तरीके से नहीं होते जो कृष्ण भगवान के नाम से हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो रहा है। मैं साइंटिफिकली समझने की कोशिश करूँगी कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो ह रे ह र इस साउंड में कुछ है, या र आम उस साउंड में कुछ है। मैं साउंड से समझने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकली तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, बट थियोरेटिकली मैं इसको मिला नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली क्या है थ्योरी, क्या है मेथोडोलॉजी जिसमें कृष्ण का नाम लेते, उनको शरण करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाता है, नॉर्मल से भी अच्छा हो जाता है। आपके विशेष आप कदमों में आके गिर जाते हैं। मैं बस जानती नहीं हूँ ये कैसे होता है, बस मुझे जानना है। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। एंड यही चीज़ इसीलिए मतलब यहाँ पे अर्जुन जानना चाहते कि किस तरीके से हम मृत्यु के वक्त भी आपके बारे में सोचते रहे। जबकि हम हेल्दी है तो उस टाइम पे हमारा दिमाग तो ईश्वर के चरण में रहता है, या ईश्वर के शरण में रहता है। बट जब हम मृत्यु के मुख में होंगे तो उस टाइम हम कैसे हमारे दिमाग को ऐसे ट्रेन करेंगे कि उस टाइम पे भी हम ईश्वर के बारे में सोच रहे, कृष्ण के बारे में सोचते रहे। सो यही है उनका सवाल। अगले श्लोक में भगवान आंसर्स देंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ भगवान हमें सिखाते, किस तरीके से हम भगवान के शरण में और उनके चरण में रह सकते हैं। यही तक था श्लोक नंबर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।